Okay, now I'm just starting the class. My screen is visible, all of you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, if you have any doubts regarding the previous classes, you can ask. Otherwise, I just start the next problem or next according to your syllabus, next theorem. If you have any doubt, please ask. You have solved your nodal analysis or super node concept problems. Yes, sir. Any facing any doubt? Good evening, sir. What? Tell. Sir, good What is the afternoon, case? sir. Yeah. That is. But I'm just asking. You are facing any problem during the nodal no, super node concept problem? Yes, sir. What type of problem you are facing? सर वो जो सुपर नोड वाला क्वेश्चन था ना, स्पेशल केस, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था। कौन सा स्पेशल केस आपको समझ में आया? जो सेकंड वाला क्वेश्चन कराया था? यस सर। आपका जिसमें अकेला वो डाउट है या बाकी किसी का डाउट है उसमें? तो अगर आपका अकेला उसमें डाउट है तो एक काम करता हूँ, उसको आप क्लास के बाद उसको पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है? ठीक है सर। ये आपका ग्रुप 2 का क्लास कंप्लीट हुआ या उनका अभी चल रहा है? चल रहा है, सर। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। Now this is the class of superposition. I am just here teaching about the superposition. This is the theorem. Okay. One. Okay. Now first come to the superposition theorem. Okay. In similar manner, what we taught before, that is your. I think some people are not joining the Google classroom. That's why I'm again and again I'm telling same thing. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Okay. The first is your superposition theorem. अगर डाउट होगा तो वहीं पर मुझे पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि ये तो ऑफलाइन ये चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, तो मुझे आपको पता नहीं चलेगा आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। जहाँ पर भी डाउट होगा आप मुझे रोक के पूछ सकते हैं, ठीक है? तो अभी पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये जो सुपरपोजिशन थ्योरम है ये क्या करता है। ये सिमिलर टाइप जो पहले हम लोग केसीएल, उसके बाद केवीएल, फिर हम लोग जो पढ़े केवीएल में नो जो मेश एनालिसिस पढ़े, केसीएल में जो नोड पढ़े, दोनों को मिला के एक अभी थ्योरम पे हम लोग आ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है ना, जो जो हम लोग पढ़ चुके हैं उनको उसको मिला के
ये थ्योरम को हम लोग सॉल्व करेंगे. दिस इज द थ्योरम बाय you have to require all the knowledge like the mesh analysis knowledge and node analysis knowledge, everything you have to require to solve this theorem problems. And by using Okay, this sir. theorem, by using this theorem, the problem solving is much simpler as compared to the previous ones. Okay, सर सर tell. सर कोई अलग का लिख सकते हैं, ये कलर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब अच्छे से. क्या दिखाई नहीं दे रहा है? मतलब बैकग्राउंड के साथ ये कलर डार्क कलर मैचिंग करा जाए तो दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से. दिख रहा है. मेरा तो नहीं दिख सर रहा. ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ ଶୁଭୁନି ସାର୍. Now you can see it is visible. यस सर, यस, थैंक यू सर. Okay. My voice is audible now. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine, fine, fine. मैं ये बोल रहा था कि अभी अभी हम लोग जो पढ़े हैं पिछले क्लास में, जो नोडल और बेस और एनीथिंग वी आर ऑलरेडी known about that. Okay, by using these concepts you have to solve this theorem problems. But what is the concept? Everybody know what is a linear system, what is a bilateral network, how a bilateral network is forming. Okay, so for a actually the definition says for a linear system, the responses like your voltages or current in any branch of a bilateral linear circuit having more than independent sources equals the algebraic sum of the responses caused by each independent source acting alone, where all the independent sources are replaced by their internal resistances. तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं एक ही लाइन में आपको बोल दूंगा. तो यहाँ पर जितना भी सोर्सेस है, मतलब मान लीजिए कि एक सर्किट में दो सोर्सेस है, कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो सोर्सेस. ठीक है, एक सिस्टम में जब दो सोर्सेस होगा उसी टाइप में, तो अगर मैं किसी भी ब्रांच में एक वोल्टेज और करंट का वैल्यू पूछूंगा तो क्या होगा, आप कैसे करेंगे, तो उस वैल्यू जो करंट होगा वो इक्वल होगा किसके साथ, तो एक आप जब एक ही वोल्टेज सोर्स को रखेंगे और दूसरा वोल्टेज सोर्स को छोड़ देंगे, मतलब सपोज एक सिस्टम में टू सर्किट्स, मतलब जैसे कि मैं एक एग्जांपल अभी दूंगा. तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर आपका एक वोल्टेज सोर्स है, तो यहाँ पर भी एक आपका वोल्टेज सोर्स है. ये सपोज आपका E1 है, ये आपका E2 है. ठीक है, R1 R2, ये आपका क्या हुआ R3. तो मेरा क्या कहने का मतलब था कि इस सर्किट में कितना वोल्टेज सोर्स है, टू नंबर्स ऑफ वोल्टेज सोर्स, दैट इज E1 एंड E2. रेजिस्टेंस कितना है 3. मैं अगर आपको पूछूंगा कि इसके अक्रॉस में कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम. ये क्या किए हैं, ये जो यहाँ पर कितना सोर्सेस है, दो सोर्सेस है, तो इसीलिए आप क्या करेंगे, एक सोर्सेस को एक्टिव करेंगे तो दूसरे को क्या करेंगे, दूसरे को शॉर्ट करेंगे या ओपन करेंगे, मतलब दूसरे को रिप्लेस कर देंगे. क्या किससे, मतलब एक ही सोर्स को आप एक बार में वो एक्टिव करेंगे, ठीक है, और दूसरे को क्या करेंगे, वो ऑन मतलब शॉर्ट कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं. ये वाला कंसेप्ट को मैं बोलूंगा कि क्या शॉर्ट करेंगे, किसको ओपन करेंगे. मगर जब एक ही सोर्स को आप कांस्टेंट मानेंगे तो डेफिनेटली सर्किट का कैसा बनेगा, एक ही अगर आप सोर्स को पकड़ेंगे तो क्या मानेंगे, तो ये आपका सोर्स हुआ रेजिस्टेंसेस. ठीक है,
तो ये वाला सोर्स को मैं आउट करूंगा, ये जो सोर्स है वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो ये जो सोर्सेस को मैं आउट करूंगा तो इसको तो क्या एक डिनोट करूंगा ना यहाँ, क्योंकि नहीं तो सर्किट क्लोज लूप नहीं बनेगा। तो इसको क्या बनाऊं, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। तो अभी अगर सपोज इसको मैं क्लोज कर देता हूं तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में इजी हो जाएगा। ये R1, ये R2 और ये R3 है, तो आपको अभी सीरीज पैरेलल पता चल जाएगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा, है कि नहीं, होगा। यस सर। सिमिलरली सिमिलरली नेक्स्ट में क्या करूंगा, दूसरे सोर्स को लूंगा। यहाँ पर आप कौन सा सोर्स लिए, E1 को लिए। सिमिलरली अभी लूंगा कौन सा सोर्स को, दूसरा सोर्स को लूंगा। तो दूसरा सोर्स यहाँ पर क्या है आपका E2। E2, और यहाँ पर आपका R2, ये आपका R1, ये आपका R3, राइट। तो ये आप यही दो को तो मिला के ये बन रहा है ना। देखो मैं टोटल सर्किट को डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में, ये आपका फर्स्ट पार्ट रहा, ये आपका सेकेंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या किया, एक ही सोर्स लगाया जो E1 है तो उसको लगा दिया, और सेकेंड पार्ट में E2 को लगा दिया, राइट। सेम ही Yes, सर्किट sir. तो है, मगर जो जो अनदर जिसको मैं एलिमिनेट किया, सपोज ये फर्स्ट कंडीशन में E2 को एलिमिनेट किया, तो E2 की जगह मैं क्या कर दिया, उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। अभी E1 को क्या कर रहा हूं मैं, E1 को देखिए यहाँ पर ये सेकंड केस में E1 को मैं क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट सर्किट कर रहा हूँ। तो सुपरपोजिशन क्या बोल रहा है, तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट इसी एक्रोस में करंट करना है, इसी एक्रोस में करंट करना है, हाँ कि नहीं। तो अगर मुझे फाइंड आउट इसी एक्रोस में करंट करूंगा तो ये वाला सर्किट इस सर्किट से ज्यादा इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। तो अभी मैं बोल रहा हूं कि इस सर्किट में जो IR3 बनेगा इस ऊपर वाला सर्किट में इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR3 ऑफ नीचे जो सर्किट बना, फिर समेशन इसको मैं डैश दे देता हूं प्लस IR3 डबल डैश। कुछ समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। सर और एक बार बता दीजिए। हाँ देखो, मैं सुपरपोजिशन थ्योरम ये आपको क्या डिफाइन करेगा, जहां पर मल्टी सोर्सेस प्रेजेंट होगा, जहां पर एक से ज्यादा सोर्सेस प्रेजेंट होगा, उस सर्किट में आप कैसे करंट का वैल्यू किसी एक ब्रांच में, सपोज ये एक ब्रांच है, डेफिनेटली ये एक R3 एक ब्रांच है कि नहीं है, R3 जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये एक ब्रांच है। यस सर। तो अगर मैं यहाँ पर अगर मैं पूछूं अभी कि इसमें करंट कितना है, ठीक है, तो इसी सर्किट में ये करंट अगर पूछूं, आप नोड भी लगा सकते हैं, मेष भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा के ये करंट को निकाल देंगे, मुझे पता है ये निकाल सकते हैं। मगर ये जो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कर रहा है, ये थोड़ा इसको इजी कर दे रहा है उसका सॉल्विंग को। आपको इतना मतलब सोचने का नहीं है। आप क्या करेंगे, जहां पर मल्टी सोर्सेस प्रेजेंट होगा, ये वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है, ये कुछ फायदा आप मतलब ये बात आप छोड़ दीजिए कि हर रोज यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स होगा, यहाँ पर करंट सोर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक ही सोर्स को आपको मान के चलना है, बाकी जो भी सोर्स है उसको नेग्लेक्ट करना है। तो उसी हिसाब से अगर एक ही सोर्स आपका बना, तो एक ही सोर्स अगर आपका बन रहा है इधर, तो एक ही सोर्स में ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बना, फर्स्ट ग्राफ बना। देखिए एक ही सोर्स को माना और दूसरे को मैं शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये वाला दूसरा पार्ट है। E2 को मैं क्या किया हूँ, शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिमिलरली उसी केस में भी ये भी एक केस पॉसिबल होगा। तो जितना पॉसिबिलिटी है, मतलब एक ही सर्किट में आप क्या करेंगे, इसको अगर तोड़ेंगे तो एक तो कांस्टेंट रहा, एक तो कांस्टेंट उसका जो रखना चाहते हैं वो सोर्स रहा, उसके बाद दूसरे को क्या किया हूँ, शॉर्ट सर्किट किया हूँ, ठीक है। तो इसमें जो करंट यहाँ पर फ्लो होगा उस करंट को कैलकुलेट करेंगे, और E2 को मान के और E1 को शॉर्ट करके फिर उसका करंट यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। इसको मैं क्या डिनोट कर रहा हूँ, I डैश R3, और इसको डिनोट कर रहा हूँ I डबल डैश R3। ओके, ये दोनों का समेशन क्या होगा, यहाँ पर जितना करंट फ्लो होगा तो मेन सर्किट में ये समेशन इसके बराबर होगा। समझ पाए क्या बोला। यस सर। जहां पर मल्टी सोर्स होगा
वहां पर ये सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के किसी ब्रांच में अगर करंट पूछा होगा तो आपको कैलकुलेट करना है। इतना ही उसका प्रिंसिपल का नियम है। मगर अभी मैं पूछूंगा कि आपका अभी आएगा डाउट मन में। एक सेकेंड। ठीक है, अभी आपका मन में एक डाउट आएगा कि सर आप तो बोले कि वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है, तो तभी आप लोग क्या करेंगे? ठीक है, तो ये ध्यान ध्यान में रखिए, जब एक वोल्टेज सोर्स होगा, क्या होगा? वोल्टेज सोर्स। ठीक है, इसका मतलब ये वाला वोल्टेज एक सोर्स होगा ऐसा। ये आपका पॉइंट ए होगा, ये आपका पॉइंट बी होगा, राइट? ये आपका वोल्टेज सोर्स हुआ। तो ये जब होगा, अगर इसको आप रिप्लेस करेंगे, मतलब इसको अगर आप एलिमिनेट करेंगे, तो वो सर्किट में क्या करेंगे आप? शॉर्ट सर्किट ये करेंगे। जहां पर करंट सोर्स होगा, ओके, सेम ए एंड बी पॉइंट, ओके, यहां पर क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट, राइट? समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूं? वोल्टेज सोर्स जब होगा तब आप उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, और करंट सोर्स जब होगा तो उसको हम लोग क्या ओपन करेंगे? सर्किट। ओपन 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 सर्किट सर्किट। करेंगे। ठीक है, तो यहां पर सपोज, यहां पर आप अभी माइंड में डाउट आ रहा है क्यों, कि मैं ऐसा क्यों बोला, या नहीं आ रहा है? कुछ तो एक सोच के मैं ऐसा बोला होगा ना, कि वोल्टेज सोर्स को मैं क्यों शॉर्ट सर्किट करूंगा और करंट सोर्स को क्यों ओपन सर्किट करूंगा। कुछ माइंड में आ रहा है कि इसका रीजन क्या हो सकता है? नो सर। नहीं, किसी का नहीं? तो सुनिए, अभी कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट मतलब क्या, अगर क्या बोलता है, मतलब इलेक्ट्रिकल क्या बोलता है इसमें। सपोज सपोज ये आपका एक क्या रहा? सोर्स, राइट? इसको मैं एक लोड के एक्रॉस में कनेक्ट कर दिया, राइट? दिस इज योर E1, दिस इज योर लोड, सपोज RL। ये सुन लो, हुआ? यस सर। तो आपका क्या मतलब, प्रैक्टिकल केस में आपको क्या फेस करना होगा? मतलब जितना वोल्टेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं उससे ये लोड का बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? यस सर। तो आपको इतना ही वोल्टेज मिल मिल पाएगा, तभी जाके ये लोड क्या होगा? ऑन होगा। नहीं तो ये लोड ऑफ हो जाएगा। तो ये कैसे ऑन होगा? क्योंकि ये लाइन का भी रेजिस्टेंस होगा, और इसी के सोर्स का भी रेजिस्टेंस, कुछ जहां पर जनरेशन हो रहा है उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? अगर मैं पूछूं इसके एक्रस में, RL के एक्रस में वोल्टेज निकालो, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो VL अगर मैं पूछूं इसके एक्रस में, तो आपका जो रेजिस्टेंस सीरीज में होगा उसके साथ RL डिवाइडेड बाय RL प्लस RS। RS कहाँ का रेजिस्टेंस होगा? सोर्स का, बिकॉज मैं बोला सोर्स का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, राइट? यस सर। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो रेजिस्टेंस वैल्यू है, ये आपको कितना करना है, तभी जाके ये वोल्टेज, जो लोड वोल्टेज इक्वल हो सकता है। ये रेजिस्टेंस वैल्यू को आप जितना घटा के जीरो कर देंगे, तभी जाके देखिए आपका लोड वोल्टेज जितना होगा, ये सोर्स वोल्टेज भी उतना होगा, है कि नहीं? तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है, तभी क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो सीरीज में लगता है इसके साथ। किसके साथ? वोल्टेज के साथ। और करंट के साथ क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलवेज पैरेलली कनेक्टेड होता है। हम लोग पढ़े हैं ना, जो सीरीज पैरेलल कनेक्शन ऑफ आर एंड जो रेजिस्टिव एलिमेंट पढ़े हैं ना इसमें। यस तो सर। उसमें हम Yes, लोग sir. कैसे, हाँ बोलो, हम लोग पढ़े हैं ना, ये जो सीरीज रेजिस्टेंस जो पढ़े थे, ये सपोज आपका R1 होगा, ये R2 होगा। Yes, sir, पढ़े थे। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें करंट तो आपका इक्वल हो जा रहा है,
I1 I2 ये सब में सीरीज में इक्वल होगा, मगर वोल्टेज आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा, हाँ कि नहीं। तो इसमें इसीलिए क्या हो रहा है, सीरीज में आपका लग रहा है रेजिस्टेंसेस, राइट। और यहां पर क्या होगा, करंट के अक्रॉस में मुझे क्या लग रहा है, पैरेलल में लगा रहा हूं। इसीलिए जब जब ये वोल्टेज सोर्स होगा, ठीक है, ये जब ये वोल्टेज सोर्स होगा तो आपके साथ क्या होगा, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको कितना करना होगा, 0, दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट करना होगा। और जब करंट सोर्स होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना करना होगा, इन्फिनिटी करना होगा। कितना, इन्फिनिटी। क्यों, देखिए सपोज यहां पर आपका पैरेलल रेजिस्टेंस है, राइट, R1 और R2 है, राइट, यहाँ पर है। तो अभी मैं R टोटल निकालूंगा इस सिस्टम का, तो क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 होगा ऐसा। मगर जब भी एक लोड लगेगा इसके साथ और यहाँ पर एक आपका सोर्स दिया गया है, सोर्स यहाँ पर करंट सोर्स गिवन है, तो ये करंट जब जाएगा तो ये वोल्टेज जितना होगा, बिकॉज पैरेलली कनेक्टेड है, यहाँ पर जितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा ये लोड के अक्रॉस में बराबर होगा, वोल्टेज होगा। तो अभी मैं पूछ रहा हूं कि टोटल जब हम लोग निकालेंगे कि यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो तब कितना होगा, 1/R टोटल डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ये R1 ये R2 है, ठीक है। तो इसमें आपको ये वाला ये जो करंट है ये यहाँ पर टोटल पहुंचाना है करंट को, क्योंकि यहाँ पर अगर ड्रॉप हो गया इतना वोल्टेज तो क्या होगा, ये वाला अगर वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो गया तो ये आपका जो डेस्टिनेशन लोड है वो एक्टिव नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूं। इसीलिए ये वाला जो रेजिस्टेंस पाथ है इसको हम लोग क्या करेंगे, इतना हाई वैल्यू कर देंगे जहां से करंट क्या होगा ना, यहाँ पर फ्लो नहीं होके और डायरेक्टली लोड के अक्रॉस में फ्लो होना शुरू करेगा। समझ पा रहे हो। तो इसीलिए ये सपोज R1 है तो इसका वैल्यू को मैं क्या करूंगा, इन्फिनिटी सपोज कर दे रहा हूं। तो टोटल जितना करंट फ्लो होना चाहिए तो डायरेक्टली वो लोड के अक्रॉस में फ्लो हो जाएगा। समझ पाए। Yes, sir. Yes, तो sir. इसीलिए करंट को करंट सोर्स के साथ रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, पैरेलली कनेक्टेड होना चाहिए, और वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस आपका सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए, Yes, ठीक sir. है। और वहां पर वैल्यू कितना होना चाहिए, वोल्टेज सोर्स के साथ जो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होगा तो उसका वैल्यू होना चाहिए 0, बिकॉज आपको वही वोल्टेज से वो ड्रॉप करवाना है लोड के अक्रॉस में। वो अगर ड्रॉप कर जा रहा है वहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से, किसी भी सिस्टम का रेजिस्टेंस के वजह से वो वोल्टेज वहीं ड्रॉप कर गया तो कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि लोड आपका एक्टिवेट नहीं है। अभी लोड को एक्टिवेट करने के लिए जहां यहाँ पर जो सिस्टम जो जनरेटेड वोल्टेज है वहां से आपको टोटल वोल्टेज फ्लो कराना होगा लोड के अक्रॉस में। तो वहां पर जब टोटल वोल्टेज फ्लो करेंगे लोड के अक्रॉस में तो आपको क्या करना होगा, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करने से फ्लो होगा, 0 बनाने से फ्लो होगा। समझ पाए। Yes, sir. हाँ, करंट के केस में क्या होगा, करंट के केस में जब मैं क्या बोला, रेजिस्टेंस आपका पैरेलली कनेक्टेड है, तो पैरेलली कनेक्टेड है मतलब अगर मेरा पहला यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस ये जो R1 है और ये RL है, ये दोनों का रेजिस्टेंस अगर इक्वल होगा तो करंट जाके यही R1 में सभी फ्लो कर जाएगा, क्योंकि यहां से ही उसको इक्वल रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो ये पाथ उसका इजी पास वाला पाथ है तो इजी से चला जाएगा यहाँ से करंट। तो यहाँ पर क्यों जाएगा वो इतना ट्रैवल करके। तो ये क्या किया, यहाँ पर ड्रॉप हो गया तो मेरा लोड उसी समय क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। मुझे करना क्या है, मुझे करना है लोड को ऑन करना है। तो इसी वाला रेजिस्टेंस को क्या करूंगा, मैं बढ़ा दूंगा। तो रेजिस्टेंस को बढ़ा दूंगा मतलब ये आपका क्या करूंगा, ई वाला सर्किट को ओपन कर दूंगा, ये जो R1 को ओपन कर दूंगा। इसीलिए करंट सोर्स आपका ओपन सर्किट होगा। जहां पर करंट सर्किट गिवन, करंट सोर्स गिवन होगा उसको आप ओपन कर दीजिए, फिर रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करके डिजायर्ड करंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। और जहां पर वोल्टेज होगा उसको शॉर्ट करके कैलकुलेशन कीजिए, तभी जाके आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। एक एग्जांपल करवा देता हूं तो ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी का डाउट है।
नो सर शॉर्ट सर्किट कैसे किए सर? शॉर्ट सर्किट इसको यस सर। देखो, शॉर्ट सर्किट मतलब रेजिस्टेंस को जीरो कर दिया। ओ समझ पाए क्या मैं बोल रहा हूँ? यस सर, यस सर। इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है ना, मतलब वोल्टेज का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जो सीरीज में कनेक्टेड होगा। यहाँ पर जो मैं बोला, यहाँ पर मैं जो बोला कि इंटरनल कुछ रेजिस्टेंस होगा सीरीज में, क्योंकि वोल्टेज जहां पर होगा वहां पर देखिए, ये पार भी बोला हूँ, वोल्टेज जहां पर होगा वहां पर रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट होगा? सीरीज में कनेक्टेड होगा। पैरेलल में क्या होता है? करंट आपका कनेक्टेड, करंट आपका इक्वल होता है, सॉरी, वोल्टेज आपका यहाँ पर इक्वल होता है, मगर करंट आपका डिफरेंट होता है। और यहाँ पर भी देखिए, वोल्टेज जहां पर डिफरेंट होगा ना, तो वोल्टेज जहां पर मैं कैलकुलेट करूंगा तभी करंट का वैल्यू पास करने, उसी के साथ सीरीज में जब पास करेगा तभी जाके मुझे वोल्टेज मिलेगा। समझ पा रहे हैं? यस सर। हाँ। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं जीरो किया, इसीलिए रेजिस्टेंस को जीरो करूंगा मतलब कितना करूंगा? शॉर्ट कर दिया सर्किट को, तो वो रेजिस्टेंस का वैल्यू जीरो हो गया। जब Yes, ओपन कर दिया तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो गया? इन्फिनिटी। infinite. उसमें करंट ही फ्लो नहीं करेगा। जहां पर करंट का वैल्यू, करंट फ्लो नहीं करेगा, हाईली वो रेजिस्टिव मीडियम है वहां पर, इसीलिए करंट नहीं फ्लो कर रहा है। यस सर, समझ गया सर। क्लियर? सर यस सर। हाँ बोलो। सर ऊपर जो सर आर एल प्लस आर एस हुआ, फिर नीचे सर आर एल हुआ, वो सर समझ में नहीं आया थोड़ा। अरे बाबू, ये जो है ना आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस किसका है? आपका जनरेशन और जहां पर ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, है यस कि सर। नहीं? मतलब इसी के साथ ये वोल्टेज के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस किसका होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज का होता है। उसके रेजिस्टेंस के वजह से वोल्टेज ड्रॉप करता है। ये अगर इंटरनल रेजिस्टेंस आपका जनरेशन और वोल्टेज में होगा तो ये क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा यहीं पे ड्रॉप कर जाएगा ना। तो इसीलिए मैं वो इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या बना दिया? जीरो बना दिया। इसीलिए आपको तो जीरो करना है ना, इसीलिए तो शॉर्ट कर रहा हूँ ना, ये जो शॉर्ट सर्किट जो कर रहा हूँ, किसके यस लिए सर। कर रहा हूँ? ये जो रेजिस्टेंस को जीरो कर दिया, इसीलिए ये आर बाई एल हुआ। इसका मतलब आपका टोटल वोल्टेज एक्रॉस लोड में जितना आप एनर्जी दे रहे थे, जितना ईएमएफ था, वो जाके लोड को एक्टिवेट कर दिया, उतना वोल्टेज लोड के एक्रॉस में ड्रॉप हुआ। समझ पाए? यस सर, यस सर। हाँ। इसीलिए जहां पर वोल्टेज सोर्स होगा उसको शॉर्ट सर्किट करना, जहां पर करंट सोर्स होगा उसको क्या करना होगा? ओपन सर्किट करना। ओके। अभी एक प्रॉब्लम करते हैं। तो ये प्रॉब्लम होगा फर्स्ट प्रॉब्लम सुपरपोजिशन को रिलेटेड। तो पहला प्रॉब्लम में एक सिंपल वाला प्रॉब्लम उठाते हैं। उसमें क्या होगा, एक आपका सोर्स है, ठीक है। प्रॉब्लम सबको पता चला क्या मैं किया हूं? प्रॉब्लम क्या गिवन है? हेलो हेलो, मैं ऑडिबल? यस सर। यस सर। यस सर। सर यस सर। प्रॉब्लम सभी को पता चला? अभी इसमें Yes, कितना sir. सोर्सेस है? इसको सॉल्व सर करने से टू पहले
टू सोर्सेस है। two. मैं क्या बोला, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे? एक सोर्स को लेंगे, बाकी को क्या करेंगे, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस शॉर्ट का सर्किट। रिप्लेस करेंगे, राइट? Yes, sir. यस सर। तो मैं Yes, sir. किसमें करंट पूछा हूँ, किसमें करंट पूछा हूँ? आई ये R3 में। i5 में, ये 5 सर है। 5 ओम रजिस्टर की। इसके एक्रस में मैं करंट पूछा हूँ, मतलब यहाँ पर मैं करंट पूछा हूँ, राइट? यस सर। तो यहाँ पर अगर मैं करंट पूछ रहा हूँ तो आपका यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है। तो पहले केस में हम लोग क्या करेंगे, केस 1, अकॉर्डिंग टू माय फॉर्मूला और अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन थ्योरम, व्हाट इज योर एम? I5 ओम इज इक्वल टू I डैश 5 ओम प्लस I आई डबल डैश 5 ओम। 5 ओम, बिकॉज हियर दो सोर्सेस है, दो वोल्टेज सोर्स है, एक है आपके ये डैश वाले के लिए और डबल डैश के लिए और एक वोल्टेज सोर्स, ठीक है? तो पहले केस 1 में क्या करेंगे हम लोग, एक ही वोल्टेज सोर्स का रखेंगे और दूसरे को क्या करेंगे आप लोग, क्या करूं, दूसरे को शॉर्ट सर्किट करना है तो। वेरी गुड, Short शॉर्ट करना है। सर्किट करना होगा, क्योंकि ये आपका वोल्टेज सोर्स है। अगर करंट सोर्स होता यहाँ को इसी को, तो इसका इंटरनल इम्पीडेंस क्या होता, वो हाईली रेजिस्टिव होता, मतलब रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी, देन आपको इसको ओपन सर्किट करना पड़ता, ठीक है? अगर क्वेश्चन में गिवन है आपको वोल्टेज, तो आपको इसको शॉर्ट सर्किट करना होगा, ठीक है? तो इसको मैं लिख देता हूं, केस 1 E2 इज शॉर्ट सर्किटेड, okay, and the circuit becomes is it okay? अभी हुआ क्या किया मैं, ये E2 को, ये आपका E2 सपोज, ये आपका E1 है, तो E2 को मैं क्या किया हूँ, शॉर्ट सर्किट कर दिया हूँ, तो ये आपका सर्किट बन गया है अभी। तो इस सर्किट में ये करंट आपको निकल जाएगा, किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं इसको। Yes, sir. तो सपोज मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, तो इसमें एक मैं पूछूं आपको, तो इसमें अगर करंट का वैल्यू अगर मैं पूछूंगा, मतलब करंट का वैल्यू निकालूंगा, तो सपोज मैं यहाँ पर नोडल एनालिसिस यूज कर रहा हूँ, ठीक है? तो नोडल एनालिसिस को मैं अभी क्या करूंगा, यहाँ पर कितना नोड होगा, बोलिए पहले। 1 2 sir. 2 no. Two. सब सर इसमें two एग्रीड node. है? 2 सर 2 यस सर, नोड। 2 नोड। वेरी गुड सर, 2, दैट इज 1 A एंड दिस इज B, ओके? ये आपका रेफरेंस नोड है, B पॉइंट, A पॉइंट है आपका नोड, अजय अननोन नोड, राइट? तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, करूं अप्लाइंग KCL एट नोड A. A। A क्या होगा इक्वेशन, बोलिए। 2 माइनस 2 VA minus VA डिवाइडेड बाय by 10. 10 इज इक्वल टू आउटगोइंग करेंट्स आर VA माइनस VB VA minus VB इज by डिवाइडेड 5. बाय, 5 20. हाँ एक तो 5 होगा और दूसरा 20. 20. 20 प्लस 0.2 है ना, एक सीरीज में है। हाँ सर, हाँ सर, यस सर। तो हाँ सर. ये माइन्यूट चीज आप छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा प्रॉब्लम, ठीक? तो ध्यान में रखना होगा इसको, VA VA minus BC. माइनस VB डिवाइडेड बाय सर 5, हाँ. ठीक तो, राइट? यस सर, यस सर, यस सर. तो ये आपका VB आपका रेफरेंस है, तो इसको मैं 0 लिख सकता हूँ, 0 0। अभी 2 माइनस VA डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू VA बाय
20.2 प्लस BA/5, ये होगा इक्वेशन, ये होगा तो यस सर यस सर। नेक्स्ट इक्वेशन निकालिए आप। तो नेक्स्ट का तो जरूरत ही नहीं होगा ना। तो पहले हाँ, नेक्स्ट का इक्वेशन अगर आपको मतलब पहले तो इसी को ही मतलब जो फॉर्मूला है उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। आप अगर इसी में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, अब पहले पहले इसको निकालिए, सॉल्व करिए इसको। VA कितना निकल रहा है? कैलकुलेटर है सभी के पास अभी? सभी क्या बाहर पर हो? यस सर है। हाँ, सीरियसली इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक पेपर है और बाद में भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आप लोग सीरियसली उसको करिए। ठीक है, इसको इसको इससे सॉल्व करिए। कितना हो रहा है? कैलकुलेटर डाल दो, आराम से आ जाएगा। तो फिर डिवाइड कर देना इस साइड में आके होता, तो ये निकल जाएगा कितना? 0.573। 0.573। ये आपका क्या हुआ? BA, राइट? यस तो सर। मतलब ये वोल्टेज आपको पता चल गया, ये वाला पॉइंट पे जो वोल्टेज, ए वाला पॉइंट पे, राइट? तो ये अगर वोल्टेज आपको पता चल गया VA इक्वल टू 0.573 वोल्ट, तो इसके एकस में करंट भी आपको पता चल जाएगा। तो करंट यहाँ पर कितना होगा? I-5 ओम इज इक्वल टू कितना होगा? 0.573 डिवाइडेड बाय 5 होगा। यस सर। यस सर तो ये आ जाएगा कितना? लगभग 0.1136 एम्पियर। और करंट का डायरेक्शन कहाँ होगा? डायरेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन आपका डाउनवर्ड, डाउनवर्ड होगा। तो मगर अभी क्या आपका कैलकुलेशन ओवर हो गया? मतलब ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या और बाकी है इसमें? सबका क्लियर? नहीं सर हाँ? सर नहीं सर, वो I5 उसका डबल डैश का भी निकालना है इस तरफ। हाँ, वोल्टेज क्योंकि का इसीलिए मैं निकाल रहा था कि केस 2 का इक्वेशन निकालिए। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? उसका भी नोड वही होगा, नोड तो वही होगा। इस साइड में भी हम लोग जाएंगे तो नोड तो वही होगा, मगर आपको उस साइड से भी वो वोल्टेज सोर्स जो है 4 वोल्ट, उसको मान के आपको और एक इक्वेशन केस 2 भी निकालना होगा। जब ये दोनों करंट निकलेगा तो दोनों का समेशन ही आपका टोटल करंट के बराबर होगा, क्योंकि ये मेथड जिस मेथड से एक सोर्स को आपको मान के चलना होगा, दूसरे सोर्स को आपको उसका इंटरनल इंपीडेंस से कन्वर्शन करना होगा। उसी हिसाब से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो केस 2, सर केस 2, हाँ बोलो।
सर ये जो 0.1146 होगा सर, 36 हाँ लिखे। हाँ, जो भी है, मतलब 1 1 तो है ना, पहला दो नंबर जो डिजिट है उसी के बेसिस में लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो 4 6 जितना भी है आप लोग डाल सकते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। इतना तक क्लियर हुआ या यस इसमें सर। कुछ डाउट? नो सर। और बाकी बच्चों का आप 2 3 बात कर रहे हैं, बाकी सब हाँ सर, हो नो गया का सर। सर। डाउट है? हाँ सर, क्लियर है सर। हाँ ठीक, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, आप अगर डाउट होगा, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर कर रहा हूँ ना, तो मुझे आप लोग का मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन समझ रहा है नहीं समझ रहा है। ये रिकॉर्डिंग भी रहेगा, आप बाद में सुन के भी उसको मतलब रिवाइज कर सकते हैं इसको, राइट। अगर डाउट भी हो सकता है तो मुझे पूछेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं केस 2 में। तो केस 2 का आप पहले केस 2 में अगर सर्किट उसका बनाइए, कैसे बन रहा है देखिए पहले। तो सर्किट बनने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस, और यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक, और यहाँ पर आपका सोर्स, राइट। तो अभी यहाँ से इसको कनेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर इसका कितना दिया गया था, 10 5, अभी ये वाला कितना था रे, 20। 20, देन 0.2, देन यहाँ पर होगा 4 वोल्ट, राइट। अभी आप लोग मुझे बोलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे कैलकुलेट कहाँ करना है, ये वाला पॉइंट को कैलकुलेट करना है, जो है आपका I" 5 को। तो ये वाला पॉइंट को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तभी जाके दोनों करंट मुझे मिलेगा, तभी मैं एडिशन करूंगा तो आपका टोटल करंट मैं कैलकुलेट करूंगा इन अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस। देन अभी यहाँ पर कितना वोल्टेज सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स, राइट। नोड कितना है, यस सर। 2। नोड कितना है यहाँ दो। सर 2 सर। दो सर। दो। तो ये आप बी पॉइंट को मैं रेफरेंस कर दिया, तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, VV इक्वल टू 0 हो गया, राइट। अभी हम लोग को पोटेंशियल के अक्रॉस में आप लोग अभी निकालेंगे, तो अप्लाइंग KCL एट नोड A, राइट। अप्लाइंग KCL एट नोड A। तो अभी जब होगा तो करंट सपोज यहां से लीजिए आप, कहां से, मैं क्या बोल रहा था, सब रोज क्लॉकवाइज लेंगे, ठीक है। तो क्लॉकवाइज लेंगे Yes, sir. तो क्या होगा यहाँ पर, 0 माइनस VA डिवाइडेड बाय 10 होगा, इस वाला करंट, यस सर। इनकमिंग करंट। यस तो सर। आउटगोइंग करंट कितना होगा, VA माइनस VB माइनस डिवाइडेड BB बाय बाय 5। 5 प्लस VA माइनस BA माइनस 4 V 4 हाँ 4 डिवाइडेड बाय 20 plus 0.2। 0.2. होगा तो इतना। यस सर। तो 20 point 20 plus 20 0.2. 20 हाँ, plus 20 plus 0.2. 0.2. हुआ 20.2। अभी इसको सॉल्व करिए। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले ये B/10 को उस साइड ले जाइए, तो BA/10 प्लस BA/5 प्लस BA/20.2 इक्वल टू VB/5 4/20.2 होगा। और VB तो आपका 0 है, शायद VB तो 0 है, तो ये again 1/10 plus 1/5 plus 1/20.2 इक्वल टू 4 कितना, ये इसको कैलकुलेट कीजिए कितना होगा, और इसको डिवाइड करके मुझे वैल्यू बोलिए कितना होगा, वो होगा VA। इसको निकाल के रखिए। नेक्स्ट,
सर 0.566। ठीक है ठीक है। सर गायब है। हेलो 0.565। 0.5 565। 565। यस सर। ओके, तो अभी आप लोग 0.565 अगर ये निकल रहा है, ठीक है, तो अभी ये पॉइंट पे देखिए, ये बी पॉइंट है, तो यहाँ पर करंट अभी कितना निकलेगा, आई डबल डैश 5 ओम कितना निकलेगा, जीरो 0.113। 0.565 डिवाइड बाय 5, 0.113, राइट। यस सर। तो दो ये भी डाउनवर्ड्स होगा ना, डाउनवर्ड। देखो Yes, sir. करंट का डायरेक्शन, यहाँ पर करंट इन कर रहा है, ये डाउन हुआ, ये यहाँ पर गया, तो करंट डाउनवर्ड हुआ ना डायरेक्शन। तो डायरेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये अब डायरेक्शन कौन, केसीएल में अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 0.113 हुआ। तो अभी अगर मैं टोटल करंट पूछूंगा कितना होगा 5 ओम के क्रस में, तो आप बोल सकते हैं दोनों के समेशन को, ये डैश प्लस आई डबल डैश 5 ओम, तो ये आपका कितना निकला था, 0.114। 0.1 प्लस 0.113, तो ये जितना बनेगा उतना एम्पियर हो जाएगा। 0.227 सर। 0.227 सभी का आ रहा है? यस सर। Yes, sir. समझ में आया क्वेश्चन? इसमें भी डायरेक्शन लिखेंगे लास्ट में। क्या लिखेंगे लास्ट में? डायरेक्शन। हाँ डायरेक्शन डाउनवर्ड है ना। यस सर। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। यस सर। हम लोग क्या किए इसमें, कौन बोल सकता है, बोलिए, थोड़ा एलाबोरेट कीजिए इसको। सर 2 वोल्टेज सोर्स था, तो पहले एक वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिए और दूसरा वोल्टेज सोर्स को लेके पहले केसीएल अप्लाई किए और ये एक नोड केसीएल में। मैग्नेटोरी नहीं है, ये किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, यस सर। ठीक है। मगर ये Yes. अगर मुझे करंट पूछा गया है ना, ठीक है, तो इसीलिए sir. मैं नोडल ले गया कि इजी हो जाएगा करंट का वैल्यू के लिए, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। यस यस सर। सर। सिमिलरली आप दूसरे केस में भी वही करेंगे। तो अभी और एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यस सर। एक सिंपल सा, ये आपका प्रॉब्लम नंबर 2। ओके, होगा ये सॉल्व। सर रेजिस्टेंस कितना है?
5 ओम होगा। पहले क्या करेंगे, पहले केस का कौन बोलेगा, बोलिए। पहले नोड्स देखेंगे। क्या देखेंगे पहले? नोड्स। वाई? पहले शॉर्ट सर्किट करेंगे। या पहले आप देखेंगे कितना सोर्स है, कितना सोर्स है यहाँ पर? 2 3 सर 3 दो दो वोल्टेज सर सोर्स करंट सोर्स। 3 ठो 3 सोर्सेस है, राइट। इसमें यस 2 सर। वोल्टेज सोर्स है और करंट सोर्स है। तो मैं क्या बोल रहा था, जहां पर मल्टीपल सोर्सेस होंगे तो वहां पर अगर मुझे क्या पूछा है, वोल्टेज और करंट किसी भी एकरस में, ब्रांच के एकरस में पूछा है। हाँ, तो जहां पर मल्टी सोर्सेस होंगे तो आप एक ही सोर्स को काम करना होगा, बाकी को क्या करेंगे, वो शॉर्ट सर्किट। इंटरनल, हाँ इंटरनल रेजिस्टेंस के एकरस में कन्वर्ट करेगा। शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट भी हो सकता है ना, करंट सोर्स भी है। डायरेक्टली हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि यस सर। उसका मतलब शॉर्ट करेंगे कि ओपन करेंगे, वो हम लोग बोलेंगे कि जो भी सोर्सेस है उसको आप लोग रिप्लेस करेंगे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के एकरस में। समझ पाए? यस सर। तो पहले केस में किसको पकड़ेंगे किसको छोड़ेंगे, बोलिए। पहले केस में किसको मैं पकड़ के चलूंगा? सर पहले केस में कर एक कर हो। कर हम्म? एक हो सर, एक हो। एक किसको सर पकड़ूं, एक हो, बोलिए एक आप हो। लोग। करंट एक हो सोर्स को पकड़ सर। सर, करंट सोर्स। करंट सोर्स को सर पकड़े। ठीक है, तो पहले आप लोग बोल रहे हैं कि मैं करंट सोर्स को पकड़ूंगा, ठीक है। तो पहले मैं केस 1 रखता हूं। तो अभी करंट सोर्स को अगर मैं रखूंगा और बाकी को सब उसका इंटरनल जो इम्पिडेंस के एकरस में वो चेंज करूंगा। तो यस उसको सर। अगर मैं चेंज करता हूं तो कैसे करूंगा? पहले जो 6 वोल्ट है उसको मैं क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किटेड, हाँ कि नहीं? यस सर। तो जहां पर 10 वोल्ट होगा, ये जो 10 वोल्ट है ये भी क्या होगा, शॉर्ट सर्किटेड। यस सर। ओनली करंट सोर्स आपका एक्टिंग करेगा और बाकी तो सब शॉर्ट कर दिया मैं यहाँ पर। ये आपका टर्मिनल हो गया ए एंड बी। हाँ, ये आपका 5 ओम, ठीक है। यहाँ पर 6 वोल्ट था यहाँ पर, और यहाँ पर कितना था, 10 वोल्ट था। तो ये दोनों आपका क्या हो गया, उसके इंटरनल इम्पीडेंस के एकरस में मैं कन्वर्ट कर दिया। और इंटरनल रेजिस्टेंस को, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, ये जो जहाँ पर शॉर्ट किया हूँ 0। तो मैं क्या बोल रहा था, जहाँ पर वोल्टेज सोर्स होगा वहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस आप कितना डालेंगे, 0 है। समझ आया? तो ये शॉर्ट सर्किटेड हो गया। तो करेंट सोर्स सिर्फ यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है, राइट। तो आपको पूछा क्या है, भी ए बी, मतलब ये ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में वोल्टेज पूछा है, कैसे निकालेंगे उसको? करंट तो एक ही सोर्स इधर है, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, बोलिए। 5/5। हम्म, कितना होगा? ट्वेंटी फाइव। वोल्ट सर 25। 25। कैसे बाबू तुम्हारा 25 आया? सर V इज इक्वल टू आई आर होता ना। तो करंट आपका, करंट कहाँ जाएगा? अच्छा, यहाँ पर जो करंट आपका आया, सपोज इसको मैं मानता हूँ, ठीक है। करंट यहाँ से आपका यहाँ तक गया, ठीक है। इसके बाद कहाँ जाएगा करंट? 2 डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। फिर बोलिए। फिर I1 2 डायरेक्शन में जाएगा और 2 वाला भी। ये सपोज I1, ये आपका I2, ये गया यहाँ पर, फिर यहाँ से आया यहाँ गया, राइट।
और यस यहाँ से वो नीचे आया, यस सर। हाँ यहाँ से नीचे आया। देखिए आप लोग तो बोल दिए कि ये करंट यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो मुझे एक बात बोलिए कि मैं करंट आपको मैं अगर घूमने के लिए मतलब खुला छोड़ूं तो आप कैसे जाएंगे? मतलब हॉस्टल से डायरेक्ट आके गेट तक आएंगे, या हॉस्टल से निकल के पूरा घूम घाम के वो पीछे जाके पूरा घूम घाम के फिर आके गेट तक आएंगे? डायरेक्ट गेट से। तो सबसे छोटे रास्ते से सर। तो जहां पर नजदीक होगा वहीं से तो आएंगे, जहां पर यस सर। आपको ज्यादा ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा वहां से तो आएंगे। मैं ऐसे यस घूम सर। घाम के मैं आपको बोलूंगा यहाँ से गेट तक आओ, आप पूरा घूम घाम के पूरा ऊपर जाके फिर नीचे आके फिर मतलब घूम घाम के वहां तक पहुंचेंगे क्या? तो आपको जहां पर शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जहां पर कम ऑपोजिशन होगा, उसी रिलेटेड आप रास्ता चूज करेंगे, राइट। यस ये सर। आपके लिए खाली लागू नहीं है, ये सभी के लिए ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। तो आप क्या करेंगे, सीधा घर से निकले, जहां पर आपको नजदीक होगा वहीं से आप लोग निकले। करंट के लिए भी वही कंसेप्ट लगाऊंगा यहाँ। तो करंट के लिए देखिए यहाँ पर अगर करंट मेरा फ्लो किया, देखिए कि कुछ भी अपोजिशन नहीं है, तो करंट को क्या करना है, करंट को एक क्लोज सर्किट फ्लो करना है, क्लोज सर्किट पाथ में फ्लो करना है, जैसे कि वो करंट का रेगुलेशन होगा। तो देखिए करंट यहीं गया फिर आके यहाँ पहुंच गया, वो नहीं है। तो यहाँ से अगर वो ऊपर जाता है, वो ज्यादा डिस्टेंस होता है, फिर वहां पर अपोजिशन आता है, तो अपोजिशन पाथ क्यों फॉलो करेगा वो, तब जबकि उसके पास दूसरा पाथ ही है फॉलो करने में। हाँ कि समझ पाई मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यस सर। तो इसको मैं क्या कौन सा करंट बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा सर्कुलेटिंग करंट। कौन सा करंट? सर्कुलेटिंग सर्कुलेटिंग करंट। करंट। ये क्या करेगा, ये कहां पर भी किसी भी लोड के एकरस में नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, जितना करंट होगा उसी सर्किट में घूमता रहेगा। समझ पाए? सर तो लोड कैसे ऑन होगा? जो 5 ओम का है वो कैसे ऑन होगा? ऑन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा। ऐसा कुछ जरूरी है कि प्रॉब्लम जब पूछेगा इसका मतलब वो ऑन होना चाहिए। मुझे मैं आपको क्या पूछा हूं कि इसके क्रस में वोल्टेज पूछा हूं, किसके क्रस में, ये जो पॉइंट है ए पॉइंट और बी पॉइंट के क्रस में मैं वोल्टेज पूछा हूं, राइट। तो अगर मेरा करंट यहाँ पर फ्लो करेगा, यहाँ से यहाँ फ्लो करता रहेगा इसी सर्किट के अंदर, ऐसा 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 करके फ्लो करता रहेगा, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, इसको मैं मान लेता हूँ बी ए बी डैश इज इक्वल टू 0। इतना ही वोल्टेज यहाँ पर फ्लो होगा, क्योंकि वहां जो करंट था उसी पाथ को, इजिएस्ट पाथ को फॉलो किया, और वहां पर उसी पाथ को फॉलो करके वहां पर सर्कुलेटिंग करंट जैसा वो उसी सर्किट में फ्लो करता गया। कहाँ पर मतलब ड्रॉप होने का चांसेस नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो उतना एनर्जी सोर्स इसके पास प्रेजेंट रहा। समझ पाए? ठीक है सर। तो अभी केस 2 को आता हूं। किसको? केस 2 को। तो एक तो करंट सोर्स लिए 5 ओम का, 5 एम्पियर का। अभी 6 वोल्ट को आते हैं, राइट। तो अभी 6 वोल्ट को एक ही साथ इसको रखते हैं, बाकी सबको नेग्लेक्ट करते हैं। राइट हुआ? हम्म, हुआ? ये सर्किट ठीक है। 6 वोल्ट का रखा, 10 वोल्ट आपका क्या हुआ, शॉर्ट सर्किटेड है। और ये 5 एम्पियर इसको क्या किया, करंट सोर्स को ओपन सर्किटेड कर दिया, है कि नहीं। यहाँ पर यस। रेजिस्टेंस 5 ओम का 5 ओम था। मुझे मैं पूछा हूं इसके एक्रस में वोल्टेज कितना होगा, राइट।
पूछा हूँ तो यस सर। यस सर, यस सर। कितना होगा बोलिए आप लोग। कौन सा पाथ में करंट फ्लो करेगा क्लोज सर्किट होने के लिए? वही क्लोज सर्किट के अंदर। हम्म? इसके अंदर यस सर। यस सर। इसके अंदर मैं किसके किसके एक्रोस में पूछा हूँ पहले देखिए। इसमें पूछा हूँ एबी के बी एक्रोस ए में, बी। बी ए बी राइट। यस सर। तो अभी अभी मैं अगर पूछूंगा सपोज यहाँ पर जो करंट जा रहा है, यहाँ पर जो करंट कहाँ से जाएगा, एनर्जी सोर्स कौन सा है, ये वाला तो एनर्जी सोर्स है ना। 6 वोल्ट है। हाँ, ये अगर आपका क्लोज होता राइट, ये अगर आपका क्लोज होता तभी यहाँ पर करंट डिवाइड होता। मगर यहाँ पर देखिए जब 6 वोल्ट है इधर, तो ये एनर्जी कहाँ कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, पास करवा रहा है। तो करंट कहाँ जाएगा, आपको ड्रॉप चाहिए ए और बी के एक्रोस में, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉप है ऑलरेडी, है कि नहीं। ये पाथ तो ब्लॉक कर रहा है ना सर्किट। आपको पहुंचना कहाँ है, ए से बी तक पहुंचना है, इसीलिए इसके एक्रोस में जो जितना वोल्टेज होगा तभी तो निकल पाएंगे ना ए से बी तक। तो आपको इसके एक्रोस में देखना होगा, आप नहीं देखेंगे कि यहाँ पर है या नहीं है। यहाँ से क्या हो रहा था, यहाँ पे भी ए से बी तो देखना चाहता था, मगर यहाँ से अगर करंट जाता है तो ये क्लोज पार्क सर्किट यहाँ पर कंप्लीट करवा देता है, और वहां पर बहुत सारा अपोजिशन है, ये वाला अपोजिशन एक आता है। इसीलिए देखो यहाँ पर मैं क्या किया हूं, तो 5 एम्पियर तो यहाँ पर ओपन सर्किटेड है, तो ये वाला पाथ तो आपका ओपन हो गया। तो करंट कहाँ फ्लो करेगा, ये ए पॉइंट से यहाँ गया। अभी अगर मैं उसको पॉइंट पाथ निकालूंगा, ये जाके देखिए ये वाला पाथ, देख पा रहे हैं, जहां पर मैं एरो मार्क दिया हूं। यस सर। क्यों, यहाँ पर कुछ अपोजिशन नहीं है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स डायरेक्टली ए पॉइंट और बी पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है। मगर यहाँ पर देखो करंट सोर्स ये ए पॉइंट और बी पॉइंट को कनेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर भी एक पॉइंट करंट डिवीजन हो रहा था, यहाँ पर भी एक करंट डिवीजन हो रहा था, जहां पर भी आप देखिए तो वहां पर करंट डिवीजन हो रहा था। तो ये वाला पाथ, जब ये एनर्जी सोर्स है, इसका 2 पॉइंट ए और बी पॉइंट को एक्रोस में कनेक्टेड है, तो मुझे ये 5 ओम में फ्लो करना क्यों जरूरी है, क्योंकि मुझे जहां तक पूछा गया है ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर 6 वोल्ट के एक्रोस में। तो यहाँ पर वोल्टेज अगर कितना ड्रॉप करेगा मैं पूछूंगी, तो कितना होगा, 6 वोल्ट वोल्टेज। समझ पाए क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? यस सर। डाउट है? सर ए और बी अगर कनेक्टेड होता तभी क्या 5 के अंदर से जाता, या फिर से वो पूरा चला जाता बाहर से? ये वाला पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। यस सर, ये ए और वाला बी से। पॉइंट, यस सर। हाँ। तो ए और बी को अगर मैं शॉर्ट सर्किट करूं, यस सर। ठीक है, और विदाउट रेजिस्टेंस अगर मैं उसको कनेक्ट करता हूं, तो उसके अक्रॉस में वोल्टेज कैसे ड्रॉप होगा बाबू, शॉर्ट सर्किट में तो वोल्टेज 0, हाँ कि नहीं। यस सर। सपोज ये जो सर्किट है ए एंड बी पॉइंट को मैं शॉर्ट कर दूंगा, हाँ सर। तो वहां पर कैसे होगा, रेजिस्टेंस होने से तो ड्रॉप करेगा ना वोल्टेज। तो रेजिस्टेंस तो उसके अंदर नहीं है ना, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, 0 है ना इंटरनल रेजिस्टेंस। यस सर। तो वोल्टेज कितना होता, 0 होता। यस सर। ये ओपन सर्किट इसलिए है बोल के, और किसी भी इसमें रेजिस्टेंस कितना है, ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है,
इसीलिए जितना वोल्टेज आपका सोर्स वोल्टेज है उतना ही वहां पर भी वोल्टेज फ्लो करेगा, क्योंकि वहां पर एक 5 ओम का यहाँ पर अपोजिशन है, मगर हम लोग का डायरेक्शन पाथ तो जहां पर देखिए 6 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल ए पॉइंट से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल देखिए बी पॉइंट से इजीली कनेक्टेड है विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी resistance. It is connected to the point A and point B. That's why the total number of total voltages is flown across your voltage AB. Understand? Similarly, you can see a 10 volt, the case 3. You can see case 3. The case 3, your 10 voltage, you can see here, 10 voltage activated and 6 voltage short circuited, right? And your 5 ohm is open circuited. That means this is the open circuited path. Yes, sir. But you can see here your 10 volt is connected directly, positive terminal is connected to your A point and negative point is connected to the B point. Now the voltage across this much is 10 volt. VAB triple dash is equal to 10 volts, sir. 10 volt. Understand? Now Yes, the sir. summation, what is the total voltage? VAB is equal to VAB dash plus VAB double dash plus VAB triple dash. That is the VAB dash is 0 plus 6 volt plus 10 volt. That is the 16 volt. Your voltage VAB is 16 volt. When A is your connected to positive terminal, B is connected to negative terminal. Clear? यस सर। सभी का क्लियर हो रहा है? क्योंकि ये थोड़ा मीडियम बहुत डिफरेंट है। यस सर। यस सर। सभी का क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। और बाकी लोग कहाँ है? 25 people are just present here. बाकी पीपल्स जो सब ज्वाइन किए थे वो सब लीव हो गए? नहीं सॉरी 34 है, एटलीस्ट 34। ओके आपका ये क्लास कितने टाइम में खत्म होता है? अभी टाइम हो गया सर खत्म। सर ओवर टाइम है। टाइम हो गया। ओके सभी का क्लियर हो रहा है? यस सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर पूरा। ओके थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू वेरी वेरी मच सर। सर अटेंडेंस। सर गए। अटेंडेंस सर। अरे सर यशवंत पूरा समझ में आ रहा है। पूरा भाई पूरा। मातुल भाई पूरा यशवंत को पूरा बढ़िया समझ में आ रहा है। मातुल किधर हो? खत्म टाटा बाय। कैसे हो? एकदम बढ़िया मजा में। मोटो प्रथम भैया रितेश तो घर के पला लगे। प्रथम भैया आज्ञा लैपटॉप यूज करू जको। तो मु किए कहला भाई? लैपटॉप घिन चना दबे। भाई गेमिंग लैपटॉप नहीं यूज करो नहीं ना। कौन खरीदा लैपटॉप? मैं। रितेश पार्टी चाहिए। कोला लैपटॉप। पार्टी कैसे लेगा रे तू? तू जान से जाना दे दे। हाँ दे उसको पार्टी दे। कौन मांग रहा है? ए गौरव लीव हो जाओ रे। अरे चलो, बाय, सुन बाय, बाय, बाय। मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है तो सब लेफ्ट हो जाओ।
बाय बाय. काय होणार